A very good evening to all. Good evening. As we stand on this 20th evening, wherein still the word GST holds relevance, because आज भी हम सोचते हैं कि GST आज 3B का लास्ट डेट है, तो GST वर्ड कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस GST वर्ड के बीच में अगर हम बिटकॉइन का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो वो चीज जो है ना उसका मतलब डबल हो जा रहा है. Just like the word demonetization of currency was gaining rounds in newspapers last year, so is the word Bitcoin now being covered by major newspapers. Gone are the days when value of a person was judged on the basis of a phrase. This phrase was like, coins make more sound, but currency notes remain silent. But now with this term Bitcoin, I feel it has been reversed, and now whosoever is having Bitcoin is making more noise. We have got an eminent faculty in the form of Dr. Tejendra Singh Rawal. We welcome sir on this day. I call upon Rohit Pagadia, Vice President, to present his welcome address on this occasion. Good evening, friends. On behalf of BI, I welcome you all to today's meeting on Bitcoin. It's a very hot topic, and today's speaker is Dr. Rawal. कभी भी ऐसा टॉपिक होता है जो ऐसा हॉट रहता है तो हमारे सामने एक ही नाम रहता है डॉक्टर रावल. इसके पहले इन्होंने ग्रीस क्राइसिस पर भी अपना भाषण दिया है, पनामा पेपर पे भी इन्होंने हम लोगों को एनलिस्ट किया, और रिसेंटली बोर्ड रूम बैठक पे भी उन्होंने समझा है कि ये सब ये जो एकदम हॉट टॉपिक है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक रहता है तो हमारे सामने एक ही नाम आता है डॉक्टर रावल. और आज की तारीख जो बिटकॉइन कॉइन्स का जो इशू है ये काफ़ी हॉट टॉपिक है. एंड कभी कुछ लोग वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, कोई डिजिटल करेंसी बोलते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं. ये क्या है मुझे भी नहीं मालूम, इसमें मैं भी ज़्यादा लाइट नहीं, मैं भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, हाउ दैट करेंसी इज क्रिएटेड, हाउ इज ट्रेडेड, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट इज सेफ एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. We will listen from Dr. Rawal. I welcome you once again. I hope that you will help by skill knowledge. Thank you. A great economist, a great orator, a marathon runner, an avid photographer, and a person whose name doesn't need any more introduction on that. We are extremely happy to welcome you, sir, here. I request Sri Rohit Agrawal, sir, Chairman of Economic Forum, to please welcome him to the floor. Okay. Stage is all set, and now call upon Dr. Tejendra Singh Rawal to please give his deliberation. Thank you very much, Saket. The chairman of the forum, Rohit ji, my very dear friend Rohit Pagadia ji, my very dear friend Naresh, Saket, and all my dear friends sitting here in the audience. Good evening to all of you. Good evening. We are here to discuss a very interesting topic. Some of you have a vague idea of what Bitcoin is. Some of you are perhaps trading on it. Some of you want to, some of you would have made big money on it, perhaps. आप लोगों ने शायद एक मारुति इन्वेस्ट की होगी और एक मर्सिडीज आपके पास होगी अभी. Some of you are planning to do that, perhaps. Some of you perhaps know the technical part of it. Some of you perhaps know the trading part of it. So I will, put everything together. सब कुछ एक साथ करूँगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनको बिल्कुल नहीं मालूम बिटकॉइन के बारे में. जैसे बगलिया साहब ने कहा, ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको कुछ नहीं मालूम, but it's so much in news the world over, every financial paper talking about Bitcoin, that it becomes important for us to discuss, to really know about it, whether it's an opportunity for us. ये नई करेंसी है तो क्या है, और is it a new form of money, and ऐसा ना हो कि मैं इसमें छूट जाऊँ, I miss the bus perhaps, it's like the way it's making money. पिछले एक साल में मेरे ख्याल से 10 गुना कितना बड़ा होगा, 10 more than 100 times in 1 year. So it's mind boggling. आपको काम करने की जरूरत क्या है. दूसरा, अगर आपके पास में इतनी अच्छी करेंसी आपको मिल जाती है तो you can just keep growing like this. So there are lots of questions that come to mind. And दूसरा ये आता है कि क्या सही है, क्या हो रहा है, whether it's going to be illegal, or are we sitting on the top of a bubble ready to burst perhaps.
या फिर जैसे लोग कह रहे हैं कि 1 लाख तक जाएगा, $1 लाख तक जाएगा इसका प्राइस। मैं कहता हूँ 1 लाख नहीं 10 लाख तक जाएगा शायद, मैं वो भी आपको समझाने वाला हूँ। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, डीमिस्टिफाई एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिटकॉइन फॉर यू। So I'll be talking my speech in, kind of dividing my speech in 3 different parts. पहले पार्ट में मैं टेक्नोलॉजी डिस्कस करूंगा कि बिटकॉइन है क्या, हमको मालूम ही नहीं, हम सोच रहे हैं सब पीपल आर, जो फोटो दिखती है एक वो गोल्डन कॉइन दिखाई दे रहा है, लोग बोल रहे हैं ये बिटकॉइन है, फिजिकल फॉर्म है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो हाउ इज इट ऑपरेटिंग, सबसे पहले में। तो फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी टेक्निकल पार्ट, जिसको समझना जरूरी इसलिए है कि अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई बिटकॉइन इज ट्रेडिंग, why it suddenly become a craze, why it is commanding some price or some premium or whatever. So ये जब तक हमको basics नहीं समझ में आएंगे, so those of you who hate technology, there are a lot of us who hate technology, उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आसान लैंग्वेज में, जितनी साधारण भाषा में, अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात मुझे इसकी याद आती है, if you cannot explain it, you have not understood it. So I hope I'll be able to explain it today, to prove that I have understood it well. तो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आपकी एक कॉमन डिनोमिनेटर लेके एक्सप्लेन करूंगा। सो द टेक्नोलॉजी पार्ट, तो मेरा पहला पार्ट होगा टेक्नोलॉजी का, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड पार्ट वुड बी द इंडियन लीगल सिनेरियो इन रिस्पेक्ट ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन इलीगल है क्या, ऐसे बारे बात होती है, लोग कहते हैं कि इलीगल है, फिर ट्रेडिंग क्यों हो रही है, फिर इतना भी यूज हो रहा है, लोग पैसे बना रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन के बारे में न्यूज थी, आज देयर वाज सम बिग न्यूज इन द न्यूज़पेपर टुडे। 100 करोड़, हाँ 100 करोड़, कितने से 2 करोड़ से 100 करोड़, कितने 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए हो गए अमिताभ बच्चन के बिटकॉइन रिलेटेड कंपनी में। तो वेदर इज लीगल और इलीगल, नंबर 1, और लीगल है तो हम क्यों नहीं कर रहे, फिर अमिताभ बच्चन क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। सो दिस वुड बी माय सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट वुड बी माय प्रेडिक्शन अबाउट बिटकॉइन, किसका क्या होने वाला है। तो पहले पार्ट में जब मैं बात करूंगा तो मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, आप यू फॉरगेट अबाउट द प्राइस एंड द वे इट्स ग्रोइंग, उसको छोड़ दीजिए। पहले पार्ट में वी जस्ट टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, उस समय मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में उसकी लीगैलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, और थर्ड पार्ट में बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं आपने, इसके बारे में बात करूंगा, और मैं तीनों पार्ट को मिक्स नहीं करूंगा आपस में। So we just dividing it into 3 different parts, and then at the end you may shower, you may bombard me with hundreds of questions. I'm willing to answer them. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट करूँ ताकि क्वेश्चन आंसर का समय ज्यादा विद द परमिशन ऑफ द चेयर में ज्यादा रखूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। So be ready with lots and lots of questions. I will be happy answering all the questions for all of you. Starting with it, मनी की डेफिनेशन। सबसे पहले हम करेंसी की बात कर रहे हैं। बिटकॉइन हम लोग समझ ही रहे हैं बहुत सारे लोग कि बिटकॉइन इज अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, जो कि जिसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। सबसे पहले समझने की मनी की डेफिनेशन क्या है। सो आई एम गोइंग हियर बाय द डेफिनेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। सो इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये जो इकोनॉमिस्ट जिसको समझते हैं पैसे को, तो इकोनॉमिस्ट को anything can be money from the point of view this definition. Gold can be money. Gold has value. Gold is a storage of value. Gold is a medium of exchange, and gold is a unit of account. So gold can be money for this purpose. Just as long as you are able to buy something out of gold, gold can be money. We are not talking of the legal money here. We are talking of anything that has got storage, medium, and a unit. और जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो पैसा है फॉर द पर्पज ऑफ, वी आर नॉट टॉकिंग लीगल टेंडर हियर, ठीक है। और मनी की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, द प्रॉपर्टीज विच मेक मनी मनी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आगे भी कुछ चेयर खाली हैं, सम ऑफ यू कम लेट कैन कम ओवर हियर। that is reserved, I think. No, I can join actually. Someone can offer to come. There is like just there. ठीक है। तो सबसे पहले एक फंजिबिलिटी का मतलब होता है कि म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन। आपने 100 रुपए का एक नोट यूज किया या दूसरा यूज किया, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। It's same, any use that you can interchange between one unit of currency and another unit of currency. Durability होना चाहिए, वो पैसा अगर खत्म हो जाए, if you are using grain as money, grain थोड़े दिन में perish हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो it cannot be, that's not durable. So gold can be money, diamond can be money, any metal can be money, but grains would not be money in the long run. वो खत्म हो जाएगा। तो पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, पैसे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। कॉग्नाइजेबिलिटी होना चाहिए, वैल्यू शुड बी इजीली आइडेंटिफाइड, एंड स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू होना चाहिए। अब इसमें से कौन से क्राइटेरिया से और कितने क्राइटेरिया से हमारा बिटकॉइन गुजरेगा, ये हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू थ्रो दिस ओपन फॉर यू।
in the beginning, and we'll be talking a lot about this later. So ये हुई पैसे की बात. अब now this is, if you trace the history of money, yes please. Why you call it stability of value? Yeah. See, value fluctuation within a reasonable limit alone would make the credibility of the money. ठीक है, अगर आपका value fluctuation, अगर Turkish lira का example ले लीजिए, जिसका 1 million lira had become equal to $1 US dollar, so the credibility is getting lost. So उस पैसे, people would throw away that money. They won't keep that money because that money has absolutely no reliability. तो रिलायबिलिटी के लिए चाहिए कि स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होगा कि 70 रुपए चल रहा है, डॉलर का रेट 70 ही चलता रहेगा. हैज टू बी अ रेंज. अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप फ्यूचर रिटर्न्स कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उसके बारे में. आप यू हैव अ लायबिलिटी टू पे. मनी हैज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेइंग अ फ्यूचर लायबिलिटी. आप उसको पे ही नहीं कर पाएंगे. सो दैट वुड नॉट बिकम, दैट वुड बी बैड मनी. अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसका बहुत ज्यादा वैल्यू. व्हेन आई से फ्लक्चुएट, इट मींस रीजनेबल बैंड के बियॉन्ड जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है. ठीक है, आई थिंक दैट क्लियर इज. So this is the economist definition of money. When it comes to legal, if you trace the history of money, I'm just spending a couple of minutes so that you have an idea of what I'm talking about. उसके बाद हम बिटकॉइन पर आते हैं. अगर हिस्ट्री देखें तो बार्टर से शुरुआत होती है. अगर आप एडम स्मिथ की बुक पढ़ें तो you would realize कि बार्टर से शुरुआत हुआ. उसके बाद तक commodities became money, sheep became money. Then ultimately gold standards पे पहुंचे हम लोग, and gold remained money for centuries together. आज भी gold is considered a very important. Even government to government transactions में भी and stability, price stability mechanism में भी gold का बहुत important role रहता है, आज भी रहता है. So gold became money. Gold continues to be an important part. And gold से initially gold standards हुआ करते हैं. Those who have read commerce and economics would understand that initially gold standards were there. That means एक 1000 रुपए का नोट होता था. It was backed by 1000 rupees worth of gold kept in the central bank, issuing banks registry, you know, in the stock. और उस स्टॉक पे रखा जाता था. उसके बेसिस पर वो ट्रेडिंग होती थी उस रुपए की. उसके बाद में we move from that to fiat money. Fiat money is where, जो आज हम यूज करते हैं, money which is backed by the government guarantee. उसमें the Reserve Bank of का जो गवर्नर आपको लिखकर देता है कि I promise to pay the bearer of this note a sum of ₹500. That is the value of the money. तो ये जब लिखा हुआ है और ये गारंटी है, इसके ऊपर में साइन की हुई है. इट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड. इट इज नॉट नेसेसरीली बैक्ड बाय गोल्ड. इट मे और मे नॉट बी. अगर कुछ हो जाएगा तो इस 500 रुपीज की वैल्यू 500 रुपीज की रहेगी. लेकिन ये भी बात तो है. दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, बट फर्क है बहुत बड़ा. Well, this government has declared this to be no longer a legal tender. So it depends upon the, the government to declare this as a fiat money. जब तक government declare कर रही है, government का वो है, तब तक है ये. Government कहेगी legal tender नहीं है, तो this will cease to be legal tender. So this is not backed by a gold standard or anything substantial which creates intrinsic value, but it is backed by the guarantee by the government. So there is a central issuing authority which is guaranteeing this money. Just keep these things in mind and we proceed to the first part of the lecture, the technical part. And then मैंने इसलिए पहले बता दिया कि now you will be thinking from this point of view whenever you think of what we are going to discuss. Is it possible? हाँ, तो possible होगा. जब तक मैं शुरुआत करता हूँ और अगर व्हाइट बोर्ड सेटअप हो जाएगा तो मेरा बहुत समय बच जाएगा. So we are talking of Bitcoin. When I say Bitcoin, I'm talking not only of Bitcoin, but 1,500 currencies which have recently come up. रोज बढ़ रही हैं, रोज नई करेंसीज आ रही हैं, वर्चुअल करेंसीज आ रही है, डिजिटल करेंसीज आ रही है. So when talking about Bitcoin, you can consider it as the 1,500 currencies that I'm talking about. And इनको we are calling them cryptocurrencies or digital currencies. Or they are based on one interesting mechanism called blockchain, which I would like to explain to you कि blockchain क्या होता है और digital currency काम कैसे करती है. पहले मैं बताना चाहूँगा आपको. ये बोर्ड सेट हो गया है. फिर मैं ये स्लाइड्स को सारी स्किप करके डायरेक्टली बोर्ड पर आ जाऊँगा. And I think that will make it easy. नहीं ठीक है. I think वो मुझे पेन दीजिए. Am I audible at the back? ठीक है ना? चलिए देखिए
मनी का पर्पस है स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जो स्टोर की बात की हमने, और उसके अलावा when you want to transfer money from one person to another, Bitcoin is basically a mechanism of transferring money from one person to another using a digital methodology without the intervention of a central authority. हमारा जो पैसा होता है, हमको अगर मुझे $5 किसी को भेजने हैं, आप में से किसी को भेजने हैं, तो मैं what I will do is मैं अपने बैंक अकाउंट में जाऊंगा, टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग नाउ, और अपने बैंक अकाउंट में जाऊंगा, वहां से मैं ट्रांसफर का कमांड दूंगा, इट विल गो टू, अब तो और ज्यादा आवाज आ रही है। तो मैं अपने बैंक अकाउंट में जाऊंगा और लेट्स से आई ए वांट्स टू ट्रांसफर लेट्स से 100 रुपीज टू बी, तो ये मैं अपने बैंक अकाउंट को, एसबीआई को मैं कांटेक्ट करूंगा, ऑनलाइन करूंगा या जैसे भी करूंगा, और इसके मैकेनिज्म के थ्रू ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो देयर इज अ सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व, मनी गो ट्रांसफर्ड हियर, वो भी क्लियरिंग आरबीआई के थ्रू होती है, हमारे यहाँ वो सब होता है। तो वी आर depending upon a centralized agency for transferring money from one person to another. Now let's consider the Bitcoin scenario. Let's consider 4 different individuals, A, B, C and D. ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं पर रह रहे हैं, और ए के पास में मैं डॉलर इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि आसानी रहेगी इंटरनेशनल करेंसी बोलने के लिए। ए के पास में $100 है, जिसमें से वो $50 डी को ट्रांसफर करना चाहता है। मान ये एक ओपन लेजर है बीच में, जहां पर इसकी मैं एंट्री कर रहा हूं, तो या इसको मैं इस तरीके से रखता हूं। तो ए ने डी को $50 ट्रांसफर किया, यहाँ इसके पास $50 आ गए हैं, और ये एंट्री मैंने नोट कर ली, ए हैज ट्रांसफर्ड टू बी $50, डी सॉरी है, ठीक है। ए ने डी को $50 ट्रांसफर किए, ये मैंने एंट्री कर ली इसके बारे में यहाँ पे। अब डी के पास $50 है, डी इसमें से $30 सी को देना चाहता है, तो डी हैज ट्रांसफर्ड $30 टू सी। तो ये सी के पास में गए, मैं दूसरी एंट्री यहाँ इसके नीचे एक और करता हूँ, ये दोनों को लिंक करता हूँ। इसको हम ओपन लेजर कह रहे हैं कि ओपन, ये सभी लोग देख पा रहे हैं, बीच में रख दिया लेजर मैंने, सब आपस में देख पा रहे हैं इसको। तो इसमें से डी ने ट्रांसफर किया सी को $30, ठीक है। तो ये एंट्री इसमें हो गई, इसमें से इसने $10 यहाँ पे ट्रांसफर किए, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट एंट्री हो गया सी टू डी $10, ठीक है। और लेट्स से यहाँ से फिर से $5 इसने यहाँ ट्रांसफर किए थे, तो $5 यहाँ पर भी आ गए, तो मेरा नेक्स्ट एंट्री हो गया बी टू ए $5। अब ये मैं एक ओपन लेजर बीच में रखा हुआ है, एक लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन कर रहा है सारा का सारा रिकॉर्ड, स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर से समझ लीजिए, और इस तरीके से मेंटेन हो रहा है। अब हमको स्टेट बैंक की जरूरत नहीं है, बिटकॉइन का जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है उसमें वी डोंट नीड अ सेंट्रल बैंकर हियर टू डू द ट्रांजैक्शन, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको हटाने का तरीका ये होगा, लेट्स से डी के पास में एक रजिस्ट्री है जिसमें डी और बी ये वॉलंटियर्स है, मान लीजिए आप इस ट्रांजेक्शन के पर्पस के लिए, जो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जैसे पोकर खेलते हैं तो 2-3-4 लोग रिकॉर्ड मेंटेन, क्रिकेट में 5-6 लोग स्टोर मेंटेन करते चले जाते हैं अपना साथ साथ में। समझ लीजिए डी एक अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, किसी की भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो ए से डी को गया, तो डी ने यहाँ अपने ए से डी को गया, तो ए से डी के पास में $50 गए, डी ने अपने पास नोट किया, बी ने भी अपने पास नोट किया। ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद में मैं सब कुछ कनेक्ट कर दूंगा आपस में। ये इसने भी 50 नोट कर लिए। दूसरी जो ट्रांजेक्शन हुई, डी से सी के पास में $30 गए, ये भी इसने नोट कर लिया, और इसने इस ट्रांजेक्शन को कनेक्ट कर लिया, इसके साथ में लेजर में डाल दिया इसने, उसको देखा देखी इसने भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में तीसरा ट्रांजेक्शन बना हमारा, बी से ए में $5 या सी टू बी में, ठीक है, $10, और उसके बाद में चौथा बना बी टू ए $5। ये दोनों ने अपने पास नोट कर लिया। अब जब ये if there are thousands and thousands of players and hundreds of people maintaining this distributed open ledger, वो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। तो उस समय हमको इसकी अब जरूरत खत्म हो गई है,
क्योंकि ये अपडेट ये लोग कर रहे हैं अपने पास में, तो हमको वी डोंट नीड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक इन बिटवीन, वी डोंट नीड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बिटवीन। ये इसका ट्रांसफर का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये लोग अपने अपने पास मेंटेन कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली एन ओपन लेजर सिस्टम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको बिटकॉइन या जो हम लोग ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि देयर इज अ बिग रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग। एक के पास में $100 है, वो इसको भी 50 भेज देगा, इसको भी 50 भेज देगा, इसको भी 50। रिकॉर्ड तो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन हो रहा है, वो ये कह देता है कि आई एम सेंडिंग 50 टू दिस पर्सन, तो 50 टू दिस एंड 50 टू दिस। तो ये रिकॉर्ड रिकंसाइल कैसे होगा कि आपके पास था तो सिर्फ 100 ही, आपने 150 भेज दिया, तो मैनिपुलेशन होने का चांस रहेगा। सो नाउ लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर हियर। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एग्जिस्टिंग सेटअप, जो बिटकॉइन का जो क्रिप्टो जो सिस्टम बना है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ब्लॉकचेन वाला सिस्टम, दिस इज ब्लॉकचेन, ये जो बन रही है ये ब्लॉकचेन है। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन, इसको सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर रही है। ओके, तो अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है। जब ए ने डी को पैसा भेजना था, तो आई थिंक डिजिटल सिग्नेचर इज अ वर्ड दैट वी ऑल आर नाउ वेरी वेल अवेयर ऑफ। उसमें प्राइवेट की और पब्लिक की होती है, इसमें से हमसे कुछ लोगों को मालूम है कि हम किस तरीके से करते हैं। आई कीप इट वेरी वेरी सिंपल अगेन कि जब मैं आपको कुछ मैसेज भेजना चाहता हूं या कुछ डॉक्यूमेंट भेजना चाहता हूं जिसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मुझे कुछ मैकेनिज्म यूज करना है, तो मैं प्राइवेट की पब्लिक की को यूज करता हूं। मैं अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट करता हूं। सो वी आर टॉकिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी नाउ। मैं अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को, एक मैसेज में लिखता हूं कि आई वांट टू सेंड $50 टू डी, ए वांट्स टू सेंड $50 टू डी। ऐसा लिखकर मैं ये नेटवर्क में डाल देता हूं कि मुझे इसको भेजना है 50, मैं भेज रहा हूं $50। ओके, तो ये मैं अपनी प्राइवेट की से इसको लॉक कर देता हूं, एनक्रिप्ट कर देता हूं, लॉक कर देता हूं, और इसको जिसको भी वेरीफाई करना है कि ए ने भेजा है या मैंने भेजा है, he has got my public key at a data, यहाँ पर एक डेटाबेस है, एक्चुअली ये ब्लॉकचेन के ऊपर ही डेटाबेस है जहां पर सबकी पब्लिक कीज अवेलेबल है। anybody can retrieve my public key and verify that this indeed comes from me, कोई फेक नहीं है, ये ए से ही आ रहा है, फेक नहीं है। दिस इज अ वेरी सिक्योर स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमारे देश में हमारी सरकार भी यूज कर रही है, हम भी यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दिस मैकेनिज्म विदाउट इवन नोइंग अबाउट इट। ये जो क्रिप्टोग्राफी है, व्हाट्सएप मैसेज दे रहे हैं उसमें ये क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है। आपका सिक्योर मैसेज जब जा रहा है तो इसी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जा रहा है। सो द सेम टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड हियर। तो आपने अब इसमें काम कैसा होगा ये वाला ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म में, ए वुड ब्रॉडकास्ट टू द होल ऑल द नेटवर्क, द होल ऑफ द नेटवर्क दैट आई वांट टू सेंड $50 टू डी। ओके, उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया यहाँ पे। Now there are people who are verifying whether this claim is correct or not. ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्योंकि प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट किया गया है, इसको वेरीफाई करने के लिए पब्लिक यूज करेंगे। जो एनक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको आप डिफीट करने की कोशिश करेंगे। थी जो हैकिंग कम्युनिटी है उन्होंने डेवलप किया है ये वाला सिस्टम, तो उनको मालूम था कि ये हैक हो जाने वाला है, ये इसमें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। देयर वुड बी पीपल हु इज गोइंग टू crack this out. So अब उनको इंसेंटिव दे दिया गया है। So you try to do a reverse working, which is very difficult. आपके पास में 5 + 8 = 13 है, लेकिन आपको 13 दिया गया है, इसमें से 5 और 8 निकालना बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। But 5 + 8 definitely would lead to only one result. आपके पास में रिजल्ट है, आपको उसका लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करना है। So you are asked to do this now. ये लोग जितने लोग यहाँ पर ये जो बीच में लोग हैं जिनको माइनर्स कहते हैं, माइनर्स, अब मैं बताऊंगा माइनर्स क्यों कहते हैं। तो ये लोग जुट जाते हैं इमीडिएटली एज सून एज दिस इज ब्रॉडकास्ट, दे स्टार्ट डूइंग अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जॉब टू फाइंड आउट हाउ टू क्रैक दिस। नाउ हाउ टू वेरीफाई दिस। अब उसको वेरीफाई करने का तरीका बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, अ लॉट ऑफ हाई क्वालिटी मशीनरी। इसके इक्विपमेंट भी बहुत लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कंप्यूटिंग पावर इतनी बढ़ती जा रही है इसको करने के लिए कि माइनर्स हैव गॉट ह्यूज कंप्यूटिंग पावर विद देम नाउ। बहुत सारा उनके पास में स्पेशलाइज्ड मशीन्स हो चुकी हैं आजकल। इनिशियल डेज ऑफ बिटकॉइन आप लैपटॉप से भी कर सकते थे ये काम। सो नाउ इट्स ग्रोइंग इनटू स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। तो आप देन दे स्टार्ट, द माइनर्स स्टार्ट
वेरीफाइंग दिस ट्रांजैक्शन। यहाँ बहुत सारे माइनर कंपटीशन में लगे हुए हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। जो सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लेगा, लेट्स से D has managed to verify this transaction, so D has a right to add this transaction to his blockchain, to the ledger here. तो इसने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया and D gets a reward in the process. मैं जब टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा हम बाद में बात करेंगे। इसको रिवॉर्ड यहाँ पर 12.5 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड मिलेगा उसको, या ये पहले 25 हुआ करता था, उसके पहले 50 हुआ करता था, ये आधा आधा होते होते 12.5 हो गया है। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज बीन बिल्ट अप। 12.5 बिटकॉइन भी कम नहीं होता, $20,000 का एक बिटकॉइन है। तो ठीक है, तो इसको $12.5 का रिवॉर्ड मिला सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व करने की वजह से। So he's been able to solve this mathematical equation at the, he's the first person to do this. So he gets a reward, उसके अकाउंट में उसका क्रेडिट हो जाता है और ये इसमें ऐड कर देता है यहाँ पे, ये ट्रांजेक्शन इसने यहाँ ऐड कर दी। अब जितने बाकी के जो टर्मिनल्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मेंटेन कर रहे हैं, वो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी इसलिए करते हैं कि मुझे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी करनी है, तो मुझे कॉपी करना जरूरी है, एंड दे आर ऑल लिंक टुगेदर। ये सारे हर ट्रांजेक्शन का जो है इस तरीके से ब्लॉक बना है कि इसमें प्रीवियस ट्रांजेक्शन का लिंक यहाँ पे है और इसमें प्रीवियस का लिंक यहाँ पे है। तो इसमें ये दिस इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दिस इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस ट्रांजेक्शन एज वेल। तो ये इसको सबसे पहला ब्लॉक, उसको मैं बाद में बताऊंगा पहला ब्लॉक क्या कहते हैं। सो दे आर ऑल रिलेटेड टुगेदर, यानी हम इसके हैश फंक्शन जब देखेंगे, दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम आईटी फील्ड, इसके हैश फंक्शन जब देखेंगे, सो इट हैज गॉट एन एड्रेस ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक and the subsequent block also जब उसमें नोट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, all these blocks, इसको ब्लॉक चेन कह रहे हैं, they have become a chain which is linked to each other, और ये चेन इस तरीके से लिंक है